Welcome to this Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today we'll also be taking calls from you on mutual fund and related issues. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. My name is V. Ravi Kumar and with me is my Hindi co-anchor Ambrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह ताजा आर्थिक खबरें लेकर हम हाजिर हैं और श्रोताओं, आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्नों को सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप सवाल पूछने के लिए हमें सीधे फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, नमस्कार। मार्केट मंत्रा में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और हेडलाइंस लेके मौजूद हैं वी रवि कुमार। Foreign investors turn net buyers after 9 months, invest nearly 5,000 crore rupees in the Indian equity markets in July. Prime Minister Narendra Modi launches power sector's revamped distribution sector scheme and 5G telecom services to be rolled out in India from October, says Communication Minister Ashwini Vaishnaw. विदेशी निवेशकों ने 9 महीने के बाद भारतीय इक्विटी बाजारों में खरीदारी शुरू की। जुलाई में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र वितरण पुनरुत्थान क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। 5,200 करोड़ रुपए मूल्य की हरित ऊर्जा परियोजनाओं की आधारशिला रखी और केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में इस अक्टूबर से 5G दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध होंगी। और आज की पहली खबर, भारतीय इक्विटी बाजारों में विदेशी निवेश में 9 महीने से चला आ रहा बिकवाली का क्रम जुलाई में टूट गया। विदेशी निवेशकों ने इस महीने में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश भारतीय बाजारों में किया। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने जुलाई में भारतीय इक्विटी बाजारों में 4,989 करोड़ रुपए डाले। हालांकि एफपीआई में इसी महीने में डेट बाजार से 2,056 करोड़ रुपए निकाल लिए। पिछले वर्ष अक्टूबर से लगातार विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे थे। इससे पहले जून में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों से 50,147 करोड़ रुपए निकाल लिए थे। Prime Minister Narendra Modi yesterday launched the Power Ministry's flagship Revamped distribution sector scheme. The scheme aims at improving the operational efficiencies and financial sustainability of the distribution companies or DISCOMs and power departments. It is being implemented with an outlay of over 3 lakh crore rupees over a period of 5 years from 2021-22 to 2025-26. The scheme envisages provision of financial assistance to DISCOMs for modernization and strengthening of distribution infrastructure with a focus on improvement of reliability and quality of supply to end consumers. Mr. Modi unveiled the scheme during a program marking the culmination of Ujjwal Bharat Ujjwal Bhavishya Power at 2047. During the program, the Prime Minister dedicated and laid the foundation stone of various green energy projects of National Thermal Power Corporation or NTPC worth over 5,200 crore rupees. On the occasion, Mr. Modi also launched the National Solar Rooftop Portal, which will enable online tracking of the process of installation of rooftop solar plants, starting from registering the applications to release of subsidy in residential consumer bank accounts after installation and inspection of the plant. He mentioned that India of today is not only a power surplus country, but is also exporting electricity. He said the energy and power sector has a huge role to play in accelerating India's progress in the next 25 years. The Prime Minister said that strengthening energy sector is important for ease of doing business and ease of living. He said the projects worth thousands of crores of rupees are significant steps in the direction of green energy and energy security for the country. These projects will strengthen India's renewable energy goals,
commitments and aspirations of its green mobility. The Prime Minister announced that work on two big green hydrogen projects in Ladakh and Gujarat is starting today. The green hydrogen plant, which is being set up in Ladakh, will produce green hydrogen for vehicles in the country, and this will be the first project in the country which will make commercial use of green hydrogen-based transport possible. Ladakh very soon will be the first place in the country where fuel cell electric vehicles will start to ply. This will help in making Ladakh a carbon-neutral region, he said. The Prime Minister informed that in the last 8 years, about 170,000 megawatt of electricity generation capacity has been added. और श्रोताओं, हम आपको ये याद दिलाते हैं कि आज रविवार के दिन हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को लेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। आप हमें सीधे फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 23314444 और 23717106 और हमारा तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। Well, the numbers, as Amrish mentioned, once more is 23314444, 23717106, and 23717117. And Dhirendra, we are talking about mutual funds. One thing that you mentioned last time as well is that people have been investing. One of the top performing funds was the Nasdaq fund over the last 2 or 3 years, I think almost 21% returns. And when the markets were high, people were investing, and now when there is a chance of averaging at a lower price, it's suddenly not available for investing. We'll talk about this. We have our first caller of the day. Sunil from Mumbai is online with us. Sunil, welcome to Market Mantra. हेलो Sunil, we can hear you. Go ahead with your question, please. नमस्कार सर जी, मुझे जरा ये जानना था कि अभी कुछ नया फंड हाउस जैसे आ रहे हैं, अभी रिसेंटली कोई एक नया फंड हाउस लॉन्च हुआ जैसे ओकवुड है, वाइट ओक जी, हाँ वाइट ओक। तो इन सब फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा क्योंकि उनका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह तो है नहीं। वो ही अपना नियम लागू जारी रखना चाहिए कि इनको एस्टैब्लिश करने दीजिए, ये नई फंड कंपनी है और इनको साबित करने का मौका दें। पर इनका कहीं और ट्रैक रिकॉर्ड है, ये कहीं और पैसा मैनेज करते थे एज अ फॉरेन इन्वेस्टर और वो हिस्ट्री अवेलेबल है। लेकिन भारत में हिस्ट्री के बजाय इनको जरूर मौका देना चाहिए 1-2 साल में। और म्यूचुअल फंड के यूनिवर्स में अभी आपके पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध है और ये नई फंड कंपनियां आ रही हैं, इनको साबित होने दीजिए। और ये आपकी सोच बिल्कुल ठीक है कि उसके बाद जब ये थोड़ा सा एस्टैब्लिश हो जाए, जब कुछ साबित हो जाए कि कौन है लोग, कैसा मैनेज कर रहे हैं, कैसा प्रदर्शन रहा है। हालांकि प्रदर्शन का एक कॉन्टेक्स्ट है कि फंड कब लॉन्च होता है, कि सब अलग अलग समय पे अलग अलग आधार होता है प्रदर्शन का, लेकिन ब्रॉडली आपको पता चल पाएगा। और अभी बहुत सारी फंड कंपनियां आने वाली हैं, कम से कम 15 नई फंड कंपनियों का लाइसेंस अभी मिलना बाकी है या उनकी कोशिश है कि उन्हें मिले और उनके लाइसेंस के का एप्लीकेशन सेबी के साथ है। तो अभी नियर फ्यूचर में बहुत सारी कंपनियां आएंगी और ये आपके पास बहुत कंफ्यूजन होगा क्योंकि इतने सारे विकल्प बढ़ने पे बहुत सारी आपको नई बातें पता चलेगी उनके बारे में और लगेगा कि कोई मौका आप छूट रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-3 अपना निवेश जरूर जारी रखिए। रकम बढ़ाने की बात है, वो भी अपना बढ़ाते रहिए अपनी आमदनी और बचत के हिसाब से, और जब ये अपने आप को साबित कर लेंगे तो ये भी आपके लिए विकल्प होगा। और दिल्ली से हमारे श्रोता JS सलूजा जी लाइन पे हैं। सलूजा जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। My gratitude to Dhirendra ji and the entire team of Market Mantra. My question is that I have been investing in HDFC Flexi Cap, which was earlier HDFC Equity Fund and HDFC Top 100 from 2004. I invested from 2004 to 11, a big chunk, maybe about 30% of my mutual fund allocation. Now that Mr. Prashant has moved out, so what should be the strategy now? Should I book it out or should I just wait to see whether this strategy itself of value based is continued, or should I just hold it like I've been doing for the past 20 years or so? Thank you. I don't expect that there'll be any knee jerk
or a radically different way of managing the money or the whole, because it's a large fund. Even navigating it or bringing about some meaningful change will also take some time. Also, I feel that, the legacy or the portfolio that Prashant has left behind will continue to work. And there is a new fund manager, and I think for HDFC to succeed with these funds is very important. They will work very hard to make sure that they continue to provide a great degree of continuity and deliver reasonable performance, if not outstanding performance, in a sustained manner. So I would say that don't worry about it. Let it be. But at the same time, make sure that you have, if it is a sizable money that you have accumulated in mutual funds, make sure that it is spread over at least 3 or 4 funds. I have come across many investors in the past who had HDFC Equity and HDFC Prudence and HDFC Top 200. They had all their money invested in the three funds together, and it was not unusual. Many investors earlier also used to have HDFC Tax Saver, and that used to be 80-90% of their money. And when this fund proved to be disappointing successively for 2-3 years, it turned out to be a very big disappointment for them. Save yourself from such disappointment. Maybe, if you are still accumulating, having a reasonable money here is okay. But if you have already accumulated, make sure that it is not overly dependent on one fund company substantially. Fix your portfolio. Ensure true diversification. Our next caller, meanwhile, is joining us. Our regular caller, Bharat Bhushan from Delhi, is online with us. Bharat Bhushan, welcome to Market Mantra. Please put your question. Hello. हाँ जी, भारत भूषण जी, सवाल पूछा। सर नमस्कार सर, धीरेन्द्र सर से मेरा ये सवाल था सर। नमस्कार पहले तो जी सर, जैसे कि मान लो कोई अपना क्या कहते हैं सिप के थ्रू जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं ना सर, एक डेट को और एक मुश्त जो होता है पैसा, या 500 या 5000, तो मैंने कई बार देखा है सर, जैसे कि मान लो सपोज करो धीरेन्द्र जी नाम की कोई कंपनी है, उसका NAV चल रहा है 50 रुपया, ठीक है सर, और अगले महीने फिर वो 60 रुपए की चलता है, फिर तीसरे महीने वो 40 आ जाता है। तो मैंने ये देखा है कि 40 में आने के टाइम में इन्वेस्ट करना बेहतर है या 60 रुपए में खरीदना बेहतर है? धन्यवाद सर। नहीं, ये तो इन्वेस्ट करना बेहतर है, हमेशा कम में इन्वेस्ट करना बेहतर है, लेकिन ये करना असंभव है और इसीलिए हम SIP करते हैं, क्योंकि ये बाजार अगर आप देखेंगे पिछले 10, 15, 20 साल का अगर आप NAV निकाल के देखेंगे तो बाजार कभी लगातार ऊपर जाता रहता है, कई बार लगातार नीचे जाता रहता है। जब नीचे जाता रहता है तब आपको लगेगा कि आपने 3 महीने नहीं लगाया होता और गिरने के बाद लगाया होता तो अच्छा रहता, लेकिन ये कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर ऐसा आप कर पाए और गलती से ऐसा अगर कुछ तुक्का लग जाए तो उसके बाद आपको भरोसा आ जाएगा कि आप कुछ बढ़िया कर पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे निवेशकों को देखा है कि जो पैसा नहीं लगाते, जैसे अगर आपको वो दौर याद हो कि जो 2003 से 2008 का दौर था, जिन्होंने पैसा निकाला और इंतजार कर रहे थे कि बाजार में गिरावट आएगी, वो बाजार में गिरावट आई ही नहीं। 2003 से 2008 का जो दौर था उसमें हमारा बाजार सीधे 2000 से 20,000 तक पहुंच गया और बिना किसी रुकावट के, बीच में कभी रुकावट आई भी तो कभी गिरावट आई भी छोटी मोटी, तो लोग देखते रह गए, उस समय हिम्मत नहीं हुआ लगाने का। उसी तरह आपने देखा होगा कि 2020 में अचानक एक दिन बाजार गिरा, बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया और उसके बाद वो इंतजार करते रह गए कि ये कोविड आया है और इसका असर होगा, बाजार धराशायी होंगे, और वो नहीं हुए, चलते गए और डेढ़ गुना हो गया बाजार। एक बार अगर आप सफल हो गए कि बाजार आपने पैसा निकाल लिया और बाजार गिर जाता है तो आपके लिए बाजार में दोबारा पैसा लगाना मुश्किल हो जाता है। SIP का जरूरत ही यही है कि आप हर महीने कमाते हैं, हर महीने बचाते हैं और हर महीने लगाते हैं, और इस उम्मीद में कि लंबे समय में बाजार ऊपर जाएगा और कम समय में बाजार को गेस करना संभव है। इसलिए आप जो आपके हाथ में है कि आप लगातार लगाइए और इक्विटी में लगाइए। और इक्विटी में ये बाजार के जो टाइमिंग का रिस्क है, कभी मिस टाइमिंग का रिस्क है, कभी मौका छूट जाने का रिस्क है और कभी ऊंचा लगाने का रिस्क है, इसको आप मिटिगेट करते हैं लगातार लगा के। और मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 8700014242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242। और मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। दिल्ली से हमारे श्रोता आर.एस. दहिया जी लाइन पे हैं। दहिया जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। नमस्कार। मेरे को धीरेन्द्र जी से क्वेश्चन है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड was showing 1 year return of 21%. Now it is showing 12%. What has gone wrong with this scheme? It has fallen drastically, and what should a decision be taken by the investor? Should we exit? Yes, it has been a disappointing fund. It remains a blue chip fund, and it has been, some of its calls has not worked out, well. But I don't think, this is the time to get out of it. Give it some more time. And, it has been extremely disappointing, and I quite agree with you. But give it some more time, and I think, things are changed things also have changed very nicely in immediate recent past. But one should just, it has nothing to do with the controversy or the thing that happened with Access in general. So just have a little more patience. Normally, Dhirendra, you say that whenever a good fund stops performing well, you wait for 2 to 3 years before you take a final decision. In this case also, would you advise him to wait for 2 years before he takes the final call? Yes, it has too compelling a history to really give it a... But, this underperformance of last 1 year has immediately, taken away all the advantages that it built in its past. For example, in the last 1 year, the fund has grown only 2% as against the index, which has gone up by 10%, and the average equity funds in general have done poorly than the index, which is about 8%. But look at this, this difference of 8-9% against the index. The last 3 years, the fund is about 14.5% as compared to 17.5%. So most of the advantage built in the past has been lost in the last 1 year. So it is it's very glaring, disappointing. And, the huge advantage which was built over the last 5, 6, 7, 8, 10 years, only the 10-year return, which means that the 10-year return in relation to 7-year return, which is the of the past 10 years, the first 3 years, the advantage that the fund built, that has been retained to an extent. And that is the period for which the fund still beats the benchmark. So and the portfolio still looks high quality, blue chip, and so on and so forth, all that it stands out to be. But it has been grossly out of favor. Give it some more time. I think things will work out well for this fund, given that it has taken a very, not much has changed except that, a lot of things have been out of favor. So, Mr. Dahiya, please call again after 6 months for this particular fund and check with Dhirendra whether you should reconsider your decision. Another regular caller of ours, Gurunath from Thane, is online with us. Gurunath, welcome to Market Mantra. Please put your question. नमस्कार सर। नमस्कार। धीरेन्द्र कुमार क्यों नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है सर, मेरे पास अभी 2 लाख रुपए जो अमाउंट है सर, तो मुझे जो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, तो क्या मुझे डेट में जाना चाहिए, बैलेंस में जाना चाहिए या इक्विटी में, और सिक्योर भी रहे अपना जो इन्वेस्ट और रिटर्न भी कुछ अच्छा, तो कुछ फंडों के नाम गिनाए तो थैंक यू। जी हाँ, 5 साल के लिए 2 लाख रुपया लगाना है और एक साथ लगाना है, क्योंकि 5 साल की अवधि और 5 साल के बाद आपको ये पैसा जरूर चाहिए होगा। तो मेरी सलाह होगी कि आपको कंजर्वेटिव फंड में किसी बैलेंस एडवांटेज में या बैलेंस फंड में के जरिए आप लगाएं, या किसी लार्ज कैप के जरिए भी लगाएं, और इस पैसे को अगर उसमें लगाएं तब भी 5-6 महीने में कुछ स्प्रेड करें, क्योंकि जो या फिर बैलेंस एडवांटेज जैसे फंड में लगा रहे हैं, बैलेंस फंड में लगाना, तो शायद एक साथ पैसा लगा भी सकते हैं। अगर इसके लिए मुझे कुछ फंड गिनाना हो तो
डीएसपी ब्लैक रॉक का इक्विटी और बॉन्ड फंड, या मिराई एसेट का हाइब्रिड इक्विटी फंड, या एसबीआई का हाइब्रिड इक्विटी फंड, ये कुछ अच्छे विकल्प हैं। गाजियाबाद से हमारे श्रोता गौरव लाइन पे हैं। गौरव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरा कैपिटल गेन के ऊपर सवाल है। जो कैम्स और के फिनटेक से स्टेटमेंट आते हैं उनमें और जो वो अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देते हैं उनमें काफी अंतर है। वो हमें वैसा ही स्टेटमेंट क्यों नहीं देते जो उन्हें दे रहे हैं? क्योंकि उनके इसमें लैटरल स्विच या जो भी स्विच होते हैं उसके बारे में और रिडेमिशन के बारे में कुछ नहीं होता। वो जस्ट कहते हैं कि बेच दिया उन्होंने नीचे, क्या हमने लैटरल स्विच किए हैं। तो हमारे यहाँ तो का स्टेटमेंट अलग होता है, उनका अलग होता है। तो पहले तो एनएमआरई ऐसी क्यों है? वो उन्हीं को वही है जो हमको इससे क्या होगा कि मैच में कोई डिस्टर्ब नहीं आएगा। इससे मैं इसके मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने, या कोई खास वजह है जिसकी वजह से ऐसा हमसे मांगा? दूसरा सर, ये जो अभी जो मार्केट जो इतना करेक्शन बढ़ गया है तो आगे क्या इसकी आपकी क्या उम्मीद है सर? अपन म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे लगाते रहे 56,000 के ऊपर, या और रुक के लगाया? अभी कुछ करेक्शन की उम्मीद लगती है आपको? थैंक यू सर। आपका पहला सवाल कि इस तरह का अंतर जो कैपिटल गेन स्टेटमेंट कैम्स या सार्वी जो कि म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रार्स हैं वो आपके निवेश के बारे में जो देते हैं वो आपके लिए अलग होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए दिए जाने वाला अलग होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए और ऐसा संभव भी नहीं है। कैपिटल गेन कैलकुलेशन के लिए वही नियम जो टैक्स कैलकुलेशन के लिए जो यूज होते हैं वही आपके लिए भी है और वही इनकम टैक्स के लिए भी है और उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। जरूर किसी मेथड का डिस्क्रिपेंसी होगा कि कहीं पे उनका कोई सिस्टम अपडेट हो चुका है जो कि अभी आपके लिए नहीं हो रहा है। और जो इनकम टैक्स के नियम है उसके आधार पे अगर कोई लेटरल स्विच है तो उसे रिडेम्पशन माना जाता है। किसी भी फंड में आप स्विच कर रहे हैं और जो अवधि है क्योंकि ये जो कैपिटल गेन्स का जो नियम है वो बहुत ही सीधा साधा है। सारे फंड पहले डिवाइड किए जाते हैं कि इक्विटी फंड है या डेट फंड है, इस बात पे ये निर्भर करता है। सारे इक्विटी फंड जिसमें 65% भारतीय इक्विटी में लगा हुआ है वो इक्विटी फंड की तरह ट्रीट होता है। बाकी सारे फंड इंक्लूडिंग इंटरनेशनल फंड उनका ट्रीटमेंट डेट जैसा होता है। जहां पे टैक्स कैपिटल गेन्स का नियम है कि जो भी गेन्स हो आपके पास अगर 3 साल से कम का है तो उसको आपकी आमदनी में जोड़ दिया जाता है। वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माना जाता है और आपकी आमदनी में जोड़ दिया जाता है। 3 साल से ज्यादा हो तो लॉन्ग टर्म गेन्स माना जाता है और उसमें इंडेक्सेशन के बाद आपको छूट टैक्स देना होता है 20% का। और इक्विटी का नियम आपको पता ही है, 1 साल लॉन्ग टर्म गेन्स और उससे कम का शॉर्ट टर्म गेन्स। शॉर्ट टर्म पे फ्लैट 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, उससे और 1 साल से ज्यादा का होल्डिंग कैपिटल गेन्स टैक्स 10% है और पहले 1 लाख रुपए के गेन पे आपको पूरी तरह छूट। तो ये नियम हो गया कैपिटल गेन्स का। और ये किसी और जहां तक स्विच की बात है उसको एक रिडेम्पशन और एक नया इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो अगर आपने कहीं से पैसा मूव किया और उस बीच में कैपिटल गेन्स होता है तो और बीच में कहीं कैपिटल लॉस हुआ तो वो आपके गेन्स को ऑफसेट कर पाता है और इसमें कहीं पे किसी तरह के अंतर की का स्कोप नहीं है। तो ये जरूर कोई सिस्टम का फेलियर है। मैं इसके बारे में और जानना चाहूंगा, अगर संभव हो तो मुझे आप ईमेल पे ये जरा जानकारी शेयर करें। मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ इसके बारे में और जानने के लिए। और जहां तक बात है कि क्या करें, बिल्कुल बाजार में अपना निवेश जारी रखें। ये बाजार बढ़ा है लेकिन हो सकता है हम बढ़ने के बाद हम पीछे मुड़ के जब देखते हैं तभी हमें पता चलता है कि उस समय कोई खास नहीं बढ़ा था या बहुत बहुत कम गिरा था। तो विश्वास के साथ अगर आप 4-5 साल से ज्यादा के लिए लगा रहे हैं तो निश्चिंता से आप अपना निवेश जारी रखिए। नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम फरीदाबाद। सुभाष इज ऑन लाइन विद अस। सुभाष, वेलकम टू मार्केट मंत्र। हेलो। हाँ सुभाष जी, सवाल पूछे अपना। हाँ जी, मैं सुभाष से सचदेव बोल रहा हूँ, फरीदाबाद से। बोलिए सर। सर मुझे धीरेन्द्र जी से पूछना था सवाल। जी सर, क्या है कि मैंने ना इनकम टैक्स रिटर्न भरा है अभी 2 दिन पहले। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ है ना मेरी टैक्स लायबिलिटीज दिखा रही थी 14,000 समथिंग की, तो वो मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। उसके बाद भी वो आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है अभी भी उसमें। तो जब मैंने उसका वेरिफिकेशन किया इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट कर दिया, उसके बाद मैंने रिटर्न का तो कॉपी डाउनलोड किया, उसके बाद स्टिल इट इज शोइंग दैट टू बी पेड। थोड़ा इंतजार कीजिए और उसके बाद ये जो आपके पास एक कंफर्मेशन आएगा सीपीसी से, उनको चूंकि ये आपके बैंक खाते से डेबिट हुआ होगा
और इनकम टैक्स में के पोर्टल के जरिए अगर ये पे हुआ है तो ये एक रिकंसिलिएशन की बात है। और चूंकि आखिर के कुछ दिनों में बहुत भारी तादाद में होंगे तो कुछ सिस्टम का ग्लिच होगा जो कि रिजॉल्व हो जाएगा। अपना एविडेंस तैयार रखिए, इसमें एक आध मेल भेजने से ये आपकी जो समस्या है ये रिजॉल्व हो पाएगी अगर टैक्स पे हो चुका है। और आगे बढ़ने से लेते हैं आज की एक और हेडलाइन स्टोरी। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में इस अक्टूबर से 5G दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध होंगी। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के तुरंत बाद स्पेक्ट्रम का आवंटन करेगी। इसके बाद अक्टूबर से 5G सेवाएं शुरू हो जाएंगी। श्री वैष्णव कल मुंबई में निवेशक सम्मेलन के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 5G सेवाओं का विस्तार बहुत धीमी गति से हो रहा है, जबकि अन्य देशों के मुकाबले भारत में 5G सेवाएं काफी तेजी से शुरू होंगी। इन सेवाओं के अधिक मूल्य के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी और सरकारी कंपनी BSNL बाजार में संतुलन बनाएगी। And today is the deadline for filing income tax return. There were a lot of questions about ITRs. The Income Tax Department said in a tweet that more than 5.1 crore ITRs have been filed till 30th of July. The IT department said that a total of 44 lakh ITRs were filed up to 6 p.m. today. And over 57 lakh 51,000 ITRs were filed yesterday. Varun from Delhi is online with us. Varun, welcome to Market Mantra. Quickly, put your question, please. सर, मुझे पूछना है जो बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी शेयर जो है ये फंड वो काफी निराशाजनक चल रहा है सर। क्या पैसा हम स्विच कर एक्सेस का मल्टी फ्लेक्स कैप में डालें प्लीज भाई, थैंक यू। जी हाँ, ये भी बिल्कुल इसकी स्थिति काफी और काफी लंबे समय तक इसका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। मुझे लगता है कि इसका यहाँ पे जिस तरह की गिरावट का दौर जारी रहा है उस नजरिए से बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी से आपको अपना पैसा फेच करना चाहिए। और next caller is Bishwajyoti from Kolkata. Bishwajyoti, welcome to Market Mantra. Please put your question. हाँ, हम धीरेन्द्र साहब से एक बात करना है। जो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप ये 5 साल से पूरा डाउन चल रहा है जी, तो धीरेन्द्र जी थोड़ा एडवाइस दीजिए इसमें हम क्या करें? SIP क्लोज करके उसमें लमसम इन्वेस्ट करें, उसमें हमको फायदा होगा क्या? और सेकेंड क्वेश्चन है जो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप का वेबसाइट जो है उसमें हम लमसम के लिए ट्राई किया था इन्वेस्ट करने के लिए, but they refuse to accept my repurchase. Please answer me. I really don't have an answer for your second question, but आपका पहला सवाल कि ये फंड बहुत डिसअपॉइंटिंग है और इसका प्रदर्शन गिरावट का दौर ये खत्म ही नहीं हो रहा, मतलब तुलनात्मक तौर पे इसका प्रदर्शन बहुत ही कमजोर रहा है। जी हाँ, इस फंड से अपना पैसा अब निकाल लेना चाहिए। बहुत समय से मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पे कुछ टर्न अराउंड होना चाहिए और कुछ नहीं हुआ। इसका समय खत्म हो चुका है जी। और धीरेन्द्र जी अब चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you, Virendra, for joining us and answering the questions of all our listeners, and thank you to our listeners who called in and asked their questions. Before we close, a reminder of the headlines. Foreign investors turn net buyers after 9 months, invest nearly 5,000 crore rupees in the Indian equity markets in July. Prime Minister Narendra Modi launches power sector's Revamped distribution sector scheme and 5G telecom services to be rolled out in India from October, says Communications Minister Ashwini Vaishnav. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar.